Hello dear learners. Today we are going to start with the revision of numericals. As in the previous video we have discussed about the few formulas and those formulas we will be using here also, and somewhere other formulas will also be used. Those I will be telling you simultaneously. Right? So see your question number 1. What is question number 1? Question number 1 is the mass of 10 kg. Mass of 10 kg is dropped. So what is given? You people are knowing very well. For solving the numericals, there are 5 rules which are supposed to be followed. Rule number 1 is to write down what is given to you. Rule number 2 is what you want to find out. Rule number 3 is which formula will be applicable. Rule number 4 is to put the values and also check whether the unit, before putting the values, check whether the unit system is same or not. अगर SI system है तो सारा SI होना चाहिए. अगर CGS system है तो सारा CGS होना चाहिए. And then rule number 5 is to go with the calculation and write down the units. Right? Again I am reminding rule 1 to write what is given to you. Rule 2 what you want to find out. Rule 3 which formula will be applicable. Rule 4 unit system is same or not. Rule 5 is that just go with the solution and write down the units, right? So mass is given, it is 10 kg. A mass of 10 kg is dropped from a height of 50 centimeter. What is given? Height is given and it is 50 centimeter. Right. Now if height is 50 centimeter, the very first thing which we have to do is to convert centimeter into meter. क्यों? क्योंकि हमारा SI system जो है वो length को मीटर में लेता है. तो ये आपके पास कितनी आ जाएगी? 50 divided by 100. It will be equal to 0.5 meter. Now what is to be find out? Find its kinetic energy. बच्चे, we have to find out here kinetic energy, right? And kinetic energy formula is half mv square. So it means that mass is with us but velocity is not given. So let's write. Let's see how to go with the velocity. One more thing is there. Here height is given ना. Height जो होता है वो distance के बराबर होता है. आपने ये किया हुआ है. Height or distance जो है they are one and the same things, right? Now as the mass body is dropped from a height 50 है ना, या 0.5 मीटर की हाइट से उसको फेंका गया. इसका मतलब है जब उसको ऊपर से नीचे की तरफ फेंका, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u वो 0 हो गई. ठीक है जी. अब आपके पास दूसरी चीज क्या है? आपकी ग्रेविटी कितनी होगी? जी जो है वो आएगा 10 मीटर पर सेकंड. आप 9.8 भी ले सकते हो. जहां कुछ नहीं दिया वहां 10 भी ले सकते हो. ठीक है जी. अब आपने यहाँ 10 ले लिया. इट विल बी पॉजिटिव ओनली. क्यों? क्योंकि यू आर गोइंग टुवर्ड्स द ग्रेविटी. आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो ग्रेविटी का साइन जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो जो है वो पॉजिटिव रहेगी. ठीक है जी. तो अब हमें क्या चाहिए? हमें v की वैल्यू निकालनी है. बच्चे v की वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे. तो यहाँ हम लगा के देखते हैं इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. नाउ व्हाट इज v? हमें पता ही नहीं, हमने निकालनी है. u कितना है? 0 है. 2. g कितना है जी? 10 है. हाइट कितनी है? डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 0.5 है जी. ठीक है. इस पॉइंट के साथ ये वाला 10 0 जो है वो कैंसिल हो गया. तो v स्क्वायर कितना आ गया? 5 इंटू 2 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब आपने एक चीज और याद रखनी है. यहाँ पे v स्क्वायर आ गया ना, हमने v स्क्वायर की ही वैल्यू यूज करनी है. तो नो नीड टू कैलकुलेट v स्क्वायर डायरेक्ट पुट हो जाएगा. ठीक है जी. सो काइनेटिक एनर्जी is equal to half. What is m? m is 10. What is v square? v square अभी तो निकालना है भाई. It is 10. So 2 5s are 10. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? काइनेटिक एनर्जी आई 50. अब हमें पता है एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जाउल. तो हमने लिख दिया 50 जाउल. राइट. उसने कहा पहले
क्या पूछा उस फर्स्ट पार्ट में? उसने पूछा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तभी निकलनी थी जब उसकी आप क्या निकालते, वेलोसिटी। ठीक है जी। अब सेकेंड पार्ट में उसने क्या पूछा है? सेकेंड पार्ट इज वेलोसिटी जस्ट इट रीचेस द ग्राउंड। फाइनल वेलोसिटी तो चाहिए थी, वो भी हम साथ ही कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है जी। देन थर्ड है, थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहा है? कहता है डज द वेलोसिटी डिपेंड ऑन द मास ऑफ द पार्टिकल। क्या जो वेलोसिटी है वो मास ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड करती है? नो, ऑलवेज रिमेंबर वेलोसिटी of the body does not depend upon its mass. Why so? Because the earth attracts all bodies with same acceleration due to gravity. Same acceleration. Which acceleration? Due to gravity. Velocity जो है कभी भी mass of the body पे depend नहीं करती. This is very very important aspect which you have to keep in mind, right? Now next है आपके पास define average power. What is average power? See, average power is the ratio. कौन सी रेशियो है? टोटल एनर्जी consumed over total time taken। ठीक है जी। इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे? P average is equal to total energy consumed, एनर्जी या वर्क डन। कौन सी एनर्जी? टोटल। टोटल एनर्जी या टोटल वर्क डन किसके बराबर? टोटल टाइम के बराबर। ठीक है जी। और एसआई यूनिट क्या होगी पावर की? एसआई यूनिट होगी आपकी वॉट। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था वॉट क्या होता है। देखो, एनर्जी की एसआई यूनिट जूल, टाइम की एसआई यूनिट सेकंड। तो जूल अपॉन सेकंड जो होता है वो क्या होता है? वॉट। राइट। नाउ सी योर बी पार्ट। अब बी पार्ट देखो। बी पार्ट है जी, लेट्स सी द क्वेश्चन बी पार्ट। See, question B is a lamp consumes, this is very important question and it is your textbook question only. A lamp consumes 1000 joule of electric energy in 10 seconds. क्या given है आपको? कहते हैं 1000 joule of energy वो use करता है लैम्प। 1000 joule of energy। ठीक है। इट इज यूजिंग, कितने टाइम में वो यूज करता है एनर्जी को? टाइम कितना है जी? 50 सेकेंड्स। ये आपको गिवन है। ठीक है। तो आपने क्या निकालना है? पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज वर्क डन ओवर टाइम टेकन और एनर्जी ओवर टाइम टेकन। ठीक है जी। तो एनर्जी कितनी है जी? 1000। टाइम कितना है जी? 50। इसके साथ ये कैंसल, 5 2 10। तो ये कितना आ गया? 50, 5 2 10। Sorry, it is 10. By mistake I have written, let me erase this. जस्ट वेट। मैंने वैल्यू 50, टाइम 50 सेकेंड्स नहीं है, क्वेश्चन में टाइम है 10 सेकेंड्स। तो गलती से मैंने टाइम पुट कर दिया 50। सो इट हार्डली मैटर्स। फॉर्मूला तो ठीक लगाया पर हमने वैल्यू जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं पुट की। ठीक है जी। तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे जी टाइम की 10 सेकेंड्स। देखिए 10 सेकेंड्स। ठीक है जी। तो 1000 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है जी। तो 100 क्या आ गया? जूल अपॉन सेकेंड। जूल अपॉन सेकेंड को क्या बोलते हैं? वॉट बोलते हैं। ये हमें बहुत बार करवाया है। ठीक है जी। नाउ सी द थर्ड पार्ट। गिव द कमर्शियल यूनिट्स ऑफ एनर्जी इन जूल्स। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी को आपने किस में देना है? ये भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी यानी कि 1 किलोवाट आवर।
किसके बराबर होता है, लिख लेते हैं एक बार दोबारा, रिकैप्चुलेट हो जाएगा। 1 किलो इंटू 1 वॉट इंटू 1 आवर। किलो का मतलब क्या है जी, 1000। वॉट का मतलब क्या है, जूल अपॉन सेकेंड। आर कितने हैं, 3600 सेकेंड है। सेकेंड के साथ सेकेंड कैंसल, तो कितना आ गया, 1 किलो वॉट आर किसके बराबर आ गया, 36 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेस्ट पावर 1 2 3 4 5 जूल्स। ठीक है, अगर इसको फिर से थोड़ा और मैनिपुलेट करोगे तो ये बन गया 3.6 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 6 जूल्स। अगर और भी सिंप्लीफाई करना है इसको तो आप पता क्या लिख सकते हो, 3.6 मेगा जूल्स। मेगा मीन्स मेगा जूल मी कंटेन्स 1 मेगा जूल कंटेन 10 रेस्ट टू पावर 6 जूल्स। आई होप दिस इज ओके टू यू। ठीक, अब देखो लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का क्या है जी। लास्ट क्वेश्चन कहता है वुमेन पुल्स अ बकेट ऑफ वाटर ऑफ टोटल मास 5 kg। एक जो वुमेन है वो क्या पुल कर रही है, एक बकेट को पुल कर रही है जिसका मास कितना है जी, 5 kg है। विच इज 10 मीटर इन 10 सेकेंड्स। कहता है वो कितना डीप है, वो उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 10 मीटर। और जो पानी पुल करके बकेट बाहर आ रही है वो कितने टाइम में बाहर आ रही है जी, 10 सेकेंड में। तो आपने क्या कैलकुलेट करना है, पावर। आपको पता है पावर किसके बराबर होती है, वर्क डन ओवर टाइम। वर्क डन किसके बराबर होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। जब कोई भी चीज पुल हो रही है या पुश हो रही है इसका मतलब है उसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है। जब पोजीशन में चेंज आता है तो कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है जी। ठीक है जी, तो यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा पोटेंशियल एनर्जी का, mgh ओवर टी। राइट, तो अब mgh की वैल्यू पुट कर लेते हैं बेटे। m, what is m, देखो m is 5, what is g, g is 10, what is h, h देखो g को हमने 10 ले लिया क्योंकि हमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल गिवन नहीं है, 9.8 लेना है तो हमने 10 ले लिया। हमारी विश है फिर तो ले सकते हैं, अगर गिवन होता तो हम ना चेंज करते इसको। ठीक है जी, तो जब हमने ये ले लिया 5 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि मास 5, हाइट 10, ग्रेविटी 10, टाइम कितना है, टाइम भी तो 10 ही है। तब ये देखो 10 10 जा 100, 100 इंटू 5, 500 डिवाइडेड बाय 10 कितना आया जी, 50 वॉट। वेरी इजी क्वेश्चन, कोई डाउट तो आप पूछ सकते हो। Now I am going to end up this video. By that time, thank you, stay blessed and wish you a good luck. Thank you.